All right, Bhagavad Gita 4.24. Brahmarpanam Brahmahavir. Brahmarpanam Brahmahavir. Brahmagnau Brahmanahutam. Brahmagno Brahmanahutam. Brahmaiva tena gantavyam. Brahmaneva ten gantavya. Brahma karma samadhina. Brahma karma samadhina. Okay, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? I can read, Prabhu. हाँ पढ़िए. A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो हम परपट पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद और डिस्कस करेंगे. कौन पढ़ेगा परपट? I can continue, Prabhuji. हाँ पढ़िए. How activities in Krishna consciousness can lead one ultimately to the spiritual goal is described here. There are various activities in Krishna consciousness, and all of them will be described in the following verses. But for the present, just for the principle of Krishna consciousness is described. A conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in the material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment. The process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere is Krishna consciousness. For example, a patient who is suffering from a disorder of the bowels due to overindulgence in milk product is cured by another milk product, namely curd. The materially absorbed conditioned souls can be cured by Krishna consciousness as set forth here in the Gita. The process is generally known as yagna or activities simply meant for the satisfaction of Vishnu or Krishna. The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. The word Brahman means spiritual. The Lord is spiritual, and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyotir, his spiritual effulgence. Everything that exists is situated in that Brahma Jyotir. But when the Jyotir is covered by the illusion, Maya, or sense gratification, it is called material. This this material veil can be removed at once by Krishna consciousness. Thus, the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumption, the contributor, and the result are all combined together, Brahman or the absolute truth. The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter detailed for the cause of the absolute truth regains its spiritual quality. Krishna consciousness is the process of covering the illusionary process of converting the illusory consciousness into Brahman or the Supreme. When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be in samadhi or trance. Anything done in such transcendental consciousness is called yagna or sacrifice for the absolute. In that condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumption, the performer or leader of the performance, and the result or ultimate gain, everything becomes one in the absolute, the supreme Brahman. That is the method of Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओके, तो सब कुछ समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ आया प्रभु जी, इसमें तो बहुत ज्यादा है. ओके, कौन कौन है जिसको कुछ समझ में आया? अच्छा, कौन है जिसको कुछ नहीं समझ में आया? यहाँ पे कोई हाथ ऊपर कर सकते हैं? रेज हैंड. और किस किस को थोड़ा थोड़ा समझ में, बाकी सबको आया समझ में? अच्छा, कौन ऐसे हैं जिनको सब कुछ समझ में आ गया? वो अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक. ओके, ऑलराइट, तो लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, साथ में करेंगे.
A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. अभी ये श्लोका और आने वाले कुछ श्लोका है, थोड़ा सा यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज करके बता रहे हैं, जो हमें समझने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझ में आना, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा इजी बनाएंगे। पहले इसको डिस्कस करने से पहले जरा देखते हैं क्या चल रहा था फोर्थ चैप्टर में। तो फोर्थ चैप्टर के शुरू से देखते हैं कि क्या डिस्कशन हो रहा है, फिर इसमें हमें पता लग जाएगा क्या लाइन ऑफ थॉट है, फिर उसमें हम और डिस्कस करेंगे। तो शुरू में क्या हुआ फोर्थ चैप्टर के, कृष्णा ने एक रेवलेशन दिया, एक चीज रिवील किया अर्जुन को। क्या बात उन्होंने बताई कृष्णा ने, किसी को याद है क्या बताई थी उन्होंने शुरू? प्रभु जी बताइए। कोई बता रहा था? हरे कृष्णा। हाँ जी बताइए। ये जो ज्ञान मैं पहले भी दे चुका हूँ विवासवन के थ्रू, और बहुत पहले भी उन्होंने दिया हुआ यही ज्ञान। हाँ, कृष्णा ने ये ज्ञान दिया था सूर्यदेव को ना, शुरू में सूर्यदेव को दिया, फिर वहां से जनरेशन बाय जनरेशन डिसिप्लिक सक्सेशन में चल रहा है ज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा में। किसने दिया? सूर्यदेव ने किसको दिया ये ज्ञान? मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसे चल रही थी। और ये सब राज ऋषि जो के राजा हैं, सेंटली किंग्स, वो आए वहां पे। उसके टाइम के बाद, इक्ष्वाकु की जनरेशन के बाद, और ये सारे के सारे जो हैं ये सेंट्स हैं। हालांकि ये राजा का रोल निभा रहे हैं मगर वो सेंट्स हैं। कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि कैसे राजा के रोल में भी आप अच्छे से कर सकते हो, कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हो आप पूरी तरह से। और यही ज्ञान जो है मैं अब आपको दे रहा हूं। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, अर्जुन का डाउट था। क्या था अर्जुन का डाउट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बताइए अलका माता जी। अर्जुन का डाउट ये था कि आप तो विवस्वान तो आपसे पहले, सूर्यदेव तो आपसे पहले हैं, तो फिर मैं इसको कैसे वो अंडरस्टैंड करूं कि आपने उनको ये ज्ञान दिया। मतलब उसने बहुत ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा। उसने ये भी नहीं बोला कि इम्पॉसिबल है कि क्या है, बहुत उसने क्वेश्चन भी किया और बहुत अच्छे वे से किया कि मैं इसको कैसे समझूं। वेरी नाइस, यस। उन्होंने कहा वो तो पहले आपसे बहुत सीनियर है, वो बाय बर्थ बहुत पहले आए, आप तो अभी हमारे साथ ही पैदा हुए, क्योंकि अर्जुन और वो एक साथ एक ही एज ग्रुप के थे ऑलमोस्ट। तो अर्जुन और कृष्ण जो है वो थोड़ा फ्रेंडशिप ज्यादा थी उनकी। बाकी ये डिस्क्राइब होता है कि जैसे पांडवों से कृष्ण मिलते थे, तो हालांकि पांडवों को हृदय में मन ही मन पता था कि कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, लेकिन फिर भी सोशल कल्चर और एटिकेट फॉलो करते थे कृष्णा भी और वो भी। तो जब नकुल सहदेव मिलते थे तो वो कृष्णा के पैर छूते थे, जब अर्जुन मिलते थे तो वो फिर अपना दोस्ती में गले मिलते थे, और जब भीम और खासकर युधिष्ठिर होते थे तो कृष्णा उनके पैर छूते थे। ऐसे होता। तो कृष्णा कभी कभार ऐसे लीला करते हैं अपने डिवोटीज के साथ। तो अर्जुन सोच रहा है कि कैसे आपने बोला होगा उसको। तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन की जो एक तरह से योग माया की कवरिंग आ गई थोड़ी सी, और अर्जुन को तो पता है सब ज्ञान है, लेकिन कवरिंग में वो ये हमारे लिए पूछ रहा है एक्चुअली, ताकि हमें पता लगे, कंफर्म हो, क्लैरिफाई हो कि कैसे है। क्योंकि कृष्णा अर्जुन के माध्यम से पूरा ज्ञान देना चाह रहे हैं ना हमें। तो कृष्णा बताते हैं कई सारे जन्म आपने और मैंने लिए हैं, और मुझे सारे याद हैं, ठीक है, और आपको नहीं है। और फिर इसमें हमने डिस्कस किया था ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है कि कृष्णा को सब कुछ याद है और हमें नहीं है।
कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? Hare Krishna Prabhu. जी, Because we हरे are under the three modes of material nature, Prabhuji, and Krishna is not. He's Very aloof good. from it. यस, क्यों है कृष्णा आलू? ही इज द क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल दिस, राइट? और कृष्णा की बॉडी जो है वो मटेरियल नहीं है। हमारी बॉडी जो है हमने ली है वो मटेरियल बॉडी है, कृष्णा की स्पिरिचुअल, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। तो इसलिए कृष्णा की बॉडी मटेरियल नहीं है, इसलिए कृष्णा को सब कुछ याद रहता है, जो भी हुआ जब भी हुआ। आपने किसी को कोई फेवर किया हो, ठीक है, तो आपको याद होगा लेकिन सामने वाला भूल जाएगा। सामने वाले ने आपकी तरफ कोई फेवर किया हो तो सामने वाले को याद रहेगा, आप भूल जाओगे। हाँ, नो डाउट, जो डिवोटीज होते हैं, जो ज्यादा मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं, वो लोग याद रखते हैं सामने वाले का, जो भी उसने अच्छी बात की हो, और वो अपना अच्छा किसी को किया वो भुला देते हैं, उसको नहीं याद रखते। नेकी कर, है ना, और कुएं में डाल, ऐसा कुछ है ना, एक हिंदी का श्लोक कोई है, कहावत। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया या बुरा किया तो ह्यूमन मेमोरी में वो थोड़े टाइम तक हमें याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन कृष्णा नहीं भूलते। आपने अगर भगवत गीता आज पढ़ी है, आपने आज स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी की है, आपने कृष्णा का नाम लिया है, चैंटिंग की है, तो आप कुछ सालों में हो सकता है भूल जाओ, या अगले जन्म में आप भूल जाओगे कि आपने ये सब किया था। ये कृष्णा कई कई जन्म तक नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। आपने पहले कुछ अच्छा काम किया होगा। कृष्णा, जगन्नाथ जी का आपने कभी देखा है? जगन्नाथ जी का फेस कैसा होता है? आंखें उनकी पूरी खुली हुई होती। क्यों? क्योंकि वो एक भी चीज वो ब्लिंक भी नहीं करते। मतलब कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो उनसे छुपा नहीं रहता। कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो, आप खोल खोल के आंख देखते हो। तो कृष्णा बता रहे हैं, इनफैक्ट कृष्णा और बताते हैं हमने आने में, कहते हैं कि देखो, आपने और मैंने कई सारे जन्म लिए हैं, और मैं तो हरि युग में आता हूं, और दुष्टों का संहार करने, और जो साधु हैं, जो डिवोटीज हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मैं हर युग में आता हूं। तो ऐसे कृष्णा बोलते हैं। और कृष्ण यही बोलते हैं कि ये सारी चीजें जो है मूढ़, जो बेवकूफ लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ सकती, लेकिन अगर किसी को समझ में आ जाए उनके जन्म और कर्म के बारे में, कि जो भगवान की लीलाएं है, भगवान का जन्म है, भगवान का पास टाइम है, इसके बारे में जो इसको पूरी तरीके से जो ज्ञान ले लेता है, वो व्यक्ति एक्चुअली ये जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर आ जाता है। जन्म मृत्यु का ये चक्र चल रहा है हमारा, उसे बाहर आ जाता है, वो उसके कंट्रोल में ही रहता है। और भगवान बता रहे हैं कि इसी फ्लो में 9th के बाद 10th में बोल रहे हैं कि being freed from attachment, fear and anger, fully absorbed in me, taking refuge on me, many persons in the past became purified of the knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. तो मेरी जो लीला है उसको जो समझ लेता है, मेरे जन्म कर्म ये सब दिव्य हैं, इसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को अभी लेने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और आसक्ति, डर, गुस्सा, इन सब से मुक्ति मिल जाती है, सारे अनर्थ चले आते हैं। जब अनर्थ चले आते हैं तो वो पूरी तरह से भगवान की शेल्टर ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं। और इस शरण में कई कई लोग पहले भी ऐसे हैं जो शुद्ध हो चुके, प्यूरिफाई हो चुके। जो जिस तरीके से भगवान की तरफ बढ़ता है उसी तरीके से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान फोर्स नहीं करते, जो जिस भाव से आता है उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर कोई मटेरियल चीजों के लिए आता है, उनको मटेरियल चीजें चाहिए, तो वो कई बार देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमने वीडियो देखा था कुछ टाइम पहले, वो एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसको चाहिए था कि कौन से देवता को जल्दी से खुश कर लो। तो नारद मुनि ने कहा, देखो आशुतोष खुश भी जल्दी हो जाते हैं और गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं।
उन्होंने कहा हाँ ये सही है, इन्हीं की पूजा करता हूँ और इनसे लेता हूँ शक्ति। तो ये जल्दी मटेरियल डिजायर्स लेने का जो टेंडेंसी, जो मेंटालिटी है, ये बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी नहीं है। ये ऐसे लोगों की निशानी है जिनकी बुद्धि मटेरियल डिजायर में पूरी तरह से लग चुकी है। ऐसे व्यक्तियों को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं आती। उनको ये सही में पता नहीं लगता कि क्या मेरे असली भलाई है। जैसे बच्चे होते हैं, उनको अगर आप 10,000 रुपए दो और एक चॉकलेट दो, तो कोई छोटा बच्चा होगा वो कहेगा कि यार ये चॉकलेट ही काम की है, ये पता नहीं क्या है, पेपर का क्या करूंगा मैं। तो ऐसा बच्चों वाली मेंटालिटी जब होती है, उसको ये नहीं पता कि 10,000 रुपए में तो कितने ले सकता है चॉकलेट्स। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो वो समझ आएगा, वो ले ले। और ऐसे लोग जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जाते हैं। ऐसे कृष्ण बता रहे हैं कि जो जिस तरीके से आता है उसी तरह से वो रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। और फिर कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर किया है सोसाइटी का। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम, ऐसे बोल रहे हैं। नो सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। कौन सा ये? हाँ नहीं सही है, चातुर्वर्ण्यम। तो उन्होंने ये बताया कि कैसे ये पूरी की पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने। 4 वर्ण और 4 आश्रम है, ठीक है। और इनको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कृष्ण बता रहे देखो, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं, और मैं क्रिएटर हूं, मैं नॉन डूअर हूं, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मुझे करना पड़े या मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और मुझे किसी कार्य के बाद रिजल्ट की इच्छा भी नहीं है। जिसको ये पता लग जाता है, जिसको ये पता लग जाता है मेरे बारे में ज्ञान है, वो कर्म बंधन में नहीं फंसता, ठीक है। पहले भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया है और उनको लिबरेशन हुई है, पहले के टाइम में मोक्ष मिला है मेरा दिव्य ज्ञान जान के। तो उन्होंने भी अपनी ड्यूटीज की, आप भी अपनी ड्यूटी करो और ये नॉलेज के साथ करो, आप उनके पथ चिन्हों पे चलो आप। इसलिए अपने कर्म करना बड़ा जरूरी है। फिर अर्जुन ने पहले चैप्टर में बोला था कि सिंफुल रिएक्शंस लग सकते हैं, उसको रिएक्शंस की चिंता थी। तो यहाँ पे कृष्णा भी एलैबोरेट कर रहे हैं कर्मा कर्मा विकर्मा, बता रहे हैं कि ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको भी समझने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। तो कृष्ण बताते हैं कि इसका ये सब नॉलेज अगर आपको मिलेगी तो आप जो है इन सब चीजों से बच सकते हो, ये मिसफॉर्चून से बच सकते हो आप। तो कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि बड़ा मुश्किल है इसको समझ पाना, कर्मा कर्मा विकर्मा के। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसको सही मायने में पता लग जाता है कि अकर्मा में आप कैसे कोई भी आपको एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो उसका फल आपको लगेगा नहीं नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कर्मा प्रूफ हो जाते। और अगर आप आर्टिफिशियली पोज करो अकर्मा करने की कि भाई मेरे को कोई एक्टिविटी नहीं करनी, वही अकर्मा है, तो ये आर्टिफिशियल मीन से ऐसा नहीं है कि आपको कर्मा नहीं लगेगा। सही तरीके का अकर्मा ये होता है कि भगवान की सेवा में लगा जाए। अगर भगवान की सेवा में लगेंगे तो उससे सही मायने में कोई रिएक्शंस आएंगे नहीं, और जो पुराने रिएक्शन है वो बर्न आउट हो जाएंगे। और इनएक्टिव रहेंगे, अगर हम सोचेंगे उससे इनएक्टिविटी से हमारे को कर्मों से बच सकता हूं मैं, तो ऐसा नहीं होगा। फिर भगवान बता रहे हैं कि ऐसे इस नॉलेज को जो ले लेते हैं, जो इस पाथ पे चलते हैं, वो
इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं भागते, वो उससे दूर रहते हैं। और ऐसे लोग जो इस ज्ञान को समझ लेते हैं और पूरा प्रयास करते हैं फॉलो करने का, इंद्र तृप्ति से दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने जो पुराने कर्म है वो भी बर्न ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको ज्ञान मिल रहा है, परफेक्ट नॉलेज मिल रही है, अब उसको वो फॉलो कर रहे हैं, भगवान के साथ कनेक्शन बिठा रहे हैं। तो ये पूरा अकर्मा का प्रोसेस है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सारी आसक्ति, अटैचमेंट जो है हमारी, कि जो सेंसेस को अच्छा लगता है वो करेंगे, जो नहीं अच्छा लगता है वो नहीं करेंगे, वो इन चक्कर में नहीं फंसता। वो करता है जो करने की जरूरत है, विच इज नीडेड, व्हाट इज द राइट थिंग, ही डज दैट। और वो करने की वजह से वो फ्रूटिव एक्टिविटीज में नहीं पड़ता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा खुश रहता है और उसे सक्सेस मिलती है स्पिरिचुअल लाइफ। तो अब ये यहाँ पे पूरे सेल्फ रियलाइज कर्म योगी के बता रहे हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। ऐसा व्यक्ति मन और बुद्धि को कंट्रोल करता है, इंद्र तृप्ति को हटाता है, और सिंपली सिर्फ जो बेयर नेसेसिटीज, जो बेयर नेसेसिटीज हैं उसके लिए काम मटेरियल एक्टिविटीज करेगा और पूरी तरीके से उसको स्पिरिचुअलाइज करेगा, और वो इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं जाता, इसलिए वो कभी उसको पाप लग ही नहीं सकता। और जो पुराने भी पाप है वो धीरे धीरे बर्न ऑफ हो जाते। ऐसा व्यक्ति जो है वो जो भी उसको मिलता है डेस्टिनी के हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो आज में जीता है, प्रेजेंट में फोकस करता है कि प्रेजेंट में मेरे हाथ में क्या है जिससे मैं कर सकूं। जैसे आपका एग्जाम है तो आप प्रेजेंट में फोकस करोगे पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ने के लिए? क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, आप इससे भगवान की सेवा अच्छी कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, अब आपका ड्यूटी नहीं है इसके बारे में चिंता करना। अब अगर रिजल्ट आ गया, जो आ गया वो इट हैज कम बाय सोन अकॉर्ड, अब उसको एक्सेप्ट करोगे। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका नहीं होता कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कई बार लोग बहुत कम मेहनत करते हैं फिर भी उनका हो जाता है। तो ये गेन फ्रॉम द ओन अकॉर्ड है, अपने डेस्टिनी के हिसाब से। तो इसमें वो व्यक्ति बहुत विचलित नहीं होता। अच्छी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन में जंप करते हैं, हाँ ये किंग ऑफ द वर्ल्ड, और बुरी सिचुएशन बिल्कुल हताश निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं करता वो व्यक्ति, वो स्टेडी रहता है सक्सेस फेलियर में, और इसी वजह से वो बंधन में फंसता नहीं है। वो अपना फोकस रखता है कि कैसे भगवान की सेवा करें, सारे कार्यों में वो भगवान की सेवा करने को इंक्लूड करने की कोशिश करता है। फिर आगे बता रहे हैं, द वर्क ऑफ अ मैन हु इज अनअटैच्ड टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 23rd में जो हमने करा था कल, the work of man who is unattached to modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence। कि उसके सारे के सारे कार्य जो होते हैं वो पूरी तरीके से फोकस होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि उसे अब दिव्य ज्ञान आ गया है। वो दिव्य ज्ञान के लेवल पे जब काम करता है तो उसके सारे के सारे कार्य भी जो होते हैं वो दिव्य हो जाते हैं, ठीक है ना। भगवान की सेवा ट्रांसेंडेंटल सेवा है, उससे फिर कोई उसे मटेरियल कारण नहीं लगता। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब होता है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को चलाता है, उसको तो भगवत धाम जाने के लिए पूरे रास्ते खुल जाते हैं उसके लिए, वो श्योरली जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगा हुआ है, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो होती है उसका कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं होता, वो स्पिरिचुअल होती हैं, वो उस नेचर की होती हैं जिस नेचर के भगवान है। तो नेचुरली वो उस लेवल पे अलग डायमेंशन में वो काम कर रहा है। वो अलग डायमेंशन में काम कर रहा है
तो वो उसकी डेस्टिनी अलग होगी, क्योंकि भगवान ने कहा ना जो जिस तरीके से मेरे साथ अप्रोच करता है उसी तरह से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल पे काम कर रहा है, वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है, अपने आप को फोकस रखा हुआ है, तो भगवान ने आपको अपना सेंटर बनाया। यहाँ पे कृष्णा जो है थोड़ी वर्ड्स ले रहे हैं जो कर्म को इंक्लूड कर रहे हैं। कर्म क्यों? क्योंकि अभी पिछले चैप्टर में हमने कर्म योगा पढ़ा था ना, उसी का कंटिन्यूएशन अभी चल रहा है। धीरे धीरे इसको और क्लैरिफाई करेंगे और स्पेसिफिकली भक्ति के बारे में बात करेंगे कृष्णा आने वाले चैप्टर्स में, तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी कृष्णा यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंस और ऐसे बता रहे हैं, उसको प्रभुपाद ने ज्यादा हमारे लिए और सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसलिए हमें समझ में आ सकता है। अब हम पर्पट को थोड़ा सा डायसेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। How activities in Krishna consciousness can lead one ultimately to the spiritual goal is described here. कि आपने जो भी सेवा करी, कार्य किए कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उसमें स्पिरिचुअल गोल मिलेगा आपको, ये यहाँ पे क्लियरली बताया जाए। क्योंकि आप कई सारे कार्य करते हो कृष्ण कॉन्शियसनेस, देयर आर वेरियस एक्टिविटीज, एंड अभी आने वाले श्लोकों में उसके बारे में भी चर्चा होगी। But for the present, just the principle of Krishna consciousness is described. A conditioned goal, लेकिन अभी के लिए सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। A conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in the material atmosphere. देखो, जब कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सुना होगा आप लोगों ने, है कि नहीं? जब किसी को कोई चीज कोई उसका फोकस होता है, जहां पे भी आपका फोकस होता है, आप उसी तरफ, उसी वे में सोचते हो, उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हो। यहाँ बताया कि हमारा अपब्रिंगिंग, इतने जन्मों से हम मटेरियल एटमॉस्फेयर में ही हैं, मटेरियल लेवल पे ही सोचते हैं हम, तो हम मटेरियल इतने ज्यादा कंडीशन और कंटेमिनेट हो गए हैं कि स्पिरिचुअल चीजें हमारे दिमाग में आनी और उसको एक्सपीरियंस करना और उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हम उसको अपने इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते, अभी उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं धीरे 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 धीरे, रिपीटेडली हियरिंग, चैंटिंग, एसोसिएशन, रीडिंग, अपनी इंटेलिजेंस को ट्रेन करेंगे, और जब एक्सपीरियंस होगा, जब भगवान हमें एक्सपीरियंसेस देंगे तो हमें रियलाइजेशन होगी, उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। यहाँ पे लिखा है कंडीशन सोल एंटैंगल्ड इन द मटेरियल कंटैमिनेशन इज श्योर टू एक्ट इन द मटेरियल एटमॉस्फेयर and yet he has to get out of such environment. अब हम मटेरियल हैं तो हम मटेरियल लेवल पे ही सोचते हैं, वहीं एक्ट करते हैं। अब हम उसी में एक्ट करेंगे तो मटेरियल लेवल से बाहर कैसे आएंगे? बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम मटेरियल लेवल में ही रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? उस वजह से हमारे को एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा जन्म, बस एक के बाद एक जन्म ही लेने पड़ते। जैसे एक आप लोगों ने सुना होगा, एक बिजनेसमैन था, बड़ा मनी माइंडेड बिजनेसमैन, तो उसकी दुकान थी बहुत बड़ी। तो अब वो उसकी बहुत बीमार हो गया। बीमार होने के बाद क्या हुआ, एकदम ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब उन डॉक्टर ने कहा कि भाई इसके पास कुछ पता नहीं हमें कितने दिन, 3 बच्चे थे उनके, उसके रमेश, सुरेश और मोहन। तो रमेश, सुरेश, मोहन, ये तीनों थे लड़के उसके, और वो अकेला, अब उसकी मृत्यु होने वाली थी। पता लग रहा था कि उसी एक आध दिन बचा इसके पास, कुछ नहीं कर पा रहा था। तो घर में बैठा था, सॉरी हॉस्पिटल में बैठा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि आज पता नहीं एक आध दिन ही है इनके पास, कोई ज्यादा है नहीं टाइम। तो आगे सब बच्चे तीनों, तो उसने कहा कौन है? रमेश। उसने कहा अच्छा रमेश तुम हो, अच्छा। उसने कहा सुरेश कहाँ है? उसने कहा सुरेश भी यही, सुरेश को बुलाओ, सुरेश है। फिर उसने तीसरे को बुलाया, रमेश, सुरेश और मोहन। मोहन आया, तीनों आ गए।
तीनों यही हो? अरे तो फिर दुकान पे कौन है कि नहीं? अरे वो मर रहा है लेकिन उसको ये चिंता हो रही है कि दुकान पे कौन है। तो ये स्थिति हो जाती है हमारी। हम इतने ज्यादा मटीरियली माइंडेड हो जाते हैं कि हम सोच नहीं पाते उसके बाद। उसको ये नहीं पता कि भैया मृत्यु होने वाली है, अगला जन्म कौन सा मिलेगा उसको। हमने एक कैलाश की स्टोरी भी सुनी थी, याद है आप लोगों को? कैलाश किस किस को याद है? जिसमें नारद मुनि गए, उसके बाद उसने कहा कि चलो भाई वैकुंठा चलते हैं। किसी को याद है वो स्टोरी? हाँ प्रभु जी। और किस किस को नहीं याद वो स्टोरी? जिसमें एक व्यक्ति था वो कैलाश नाम का, उसके सामने वो कह रहा था मेरे को जाना है इस जगत से दूर, भगवान आपकी सेवा में जाना है। तो नारद मुनि प्रकट हो गए उसके सामने। उन्होंने कहा आपने भगवान से प्रार्थना की, चलो। तो उसने कहा अरे लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मेरे को पढ़ाना लिखाना इतना सब कुछ किया है मेरे लिए, तो आप थोड़े साल वेट करो। तो थोड़े साल वेट करने के लिए बोला, थोड़े साल बाद फिर आए। अब उसका स्कूल कॉलेज सब हो गया था। कहता नहीं नहीं अभी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने इतना मेरे लिए किया है। अच्छा कुछ साल बाद आना, कुछ साल में आए। अब उसकी शादी हो चुकी थी। कह रहा अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मेरी शादी है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, फैमिली सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे। मैंने ठीक है। कुछ साल बाद अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको तो मेरे को ध्यान रखना है, बड़ा करना है। तो ऐसे हर कुछ टाइम में वो टालता जा रहा था इस चीज को। अल्टीमेटली वो बुढ़ा हो गया। चलो भाई अब चलो, वैकुंठा जाने की तुमने इच्छा प्रकट की थी, मुझे भगवान ने ऐसा मेरे लिए प्रयोजन किया है कि उन्होंने कहा है कि किसी को भी आपका मन हो आप लेके आ सकते हो, चाहे किसी को कोई एलिजिबल भी ना हो, फिर भी आप उसको कहोगे तो हम अलाउ कर देंगे। तो आपके लिए मैंने स्पेशल कंसिडरेशन है, चलो आप। उन्होंने कहा देखो आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अभी मेरा बच्चों की अभी शादी हुई है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अगर ध्यान नहीं रखूंगा कैसे करेंगे। और फिर उसको करियर में भी हेल्प करनी है मुझे, अभी उसको बिजनेस आया नहीं इतना, थोड़ा मैं उसको गाइड करूंगा। फिर उसके बच्चों के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं फिर भी। तो कहने का मतलब है नेक्स्ट टाइम वो आए तो वो था ही नहीं कैलाश वहां। उन्हें देखा कि कहाँ है भाई कैलाश, नारद मुनि को तो सब आइडिया हो जाता है। तो उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से देखा तो कैलाश जो था उन्हें अगले जन्म में एक क्या बन गया था, डॉग बन गया था नेक्स्ट जन्म। और वो कहाँ पे था, क्योंकि वो घर से लोगों से इतनी आसक्ति थी, उसको अटैचमेंट थी। वो कुत्ता भी जो था वो घर के पास में ही पैदा हुआ। और जो उसके फैमिली वाले बच्चे थे या बच्चों के बच्चे थे, वो जब आते जाते थे वो कुत्ते को शू शू करते रहते थे, मारते थे कई बार अगर वो पास आ जाता। तो ये हालत हो जाती है। तो इसलिए अटैचमेंट और मटेरियल कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, इतने जन्मों से है, इतने टाइम से हमारे अंदर, कि उसमें से बाहर आना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं और स्पिरिचुअल लेवल पे सोचते हैं और स्पिरिचुअल, तो आप देखोगे आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी, आप अलग तरीके से सोचोगे, अलग तरीके से देखोगे सब। तो ऐसे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल किंगडम में ही जाएंगे। यहाँ पे एक है, समझ में आ रहा है सबको अभी तक? प्रभु जी क्या क्या बन गया था, समझ नहीं आया पॉइंट को। वो डॉग बन गया नेक्स्ट लाइफ में। पॉइंट ये है वहां पे कि आपको जब मौका मिल रहा है नारद मुनि की बात सुनने का, तो आपको सुनना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज के साथ क्या हुआ, ध्रुव महाराज का टाइम जब था, ध्रुव, आपको ध्रुव की स्टोरी पता होगी। छोटे से 5 साल के बच्चे थे, उन्होंने परफेक्ट कर लिया अपनी लाइफ में। परफेक्ट करने के बाद जब आया उनके पास ऑप्शन कि भाई चलो अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड चलो, उन्होंने कहा मेरे से पहले मेरी माता जी को लेके जाओ, मैं तो चलूंगा लेकिन उनको भी साथ, दोनों को। उन्होंने कहा वो तो आपकी इच्छा से ऑलरेडी अरेंजमेंट हो गया, वो देखो जा रहे हैं। तो वो एक प्लेन में वो जा रहे थे, एक प्लेन में। तो ऐसे होता है। आपकी दृढ़ निश्चय होनी चाहिए कि हमें तो भगवान की सेवा में जाना ही है, लगना ही है, भगवान के पास जाना ही है। अगर आप प्योर हो जाओगे तो सारे आपके परिवार, उनको इमेंस बेनिफिट हो। जब ये समझ लोगे आप और सीरियसली करोगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका गोल स्पिरिचुअल हो जाएगा, मटेरियल नहीं रहेगा। फिर मटेरियल लेवल में सोचोगे नहीं। मटेरियल कैलकुलेशन मतलब जैसे बच्चे के क्या होती है, उसका हर जो भी चीज दो आप मुंह में डाल लेता है बच्चा,
उसको पता ही नहीं उसके अलावा कुछ और, उसकी एक स्टेज ऐसी है। तो उसी तरह से हमारी स्टेज मटीरियल लेवल पे सोचने की है अभी। अब जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, भगवत गीता को अच्छे से इम्बाइब करेंगे, तो उसी तरह से हमारी और ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगी। तो फिर अगर कोई कहेगा हमें जाने के लिए, हम कहेंगे यस वी आर रेडी राइट नाउ, लेट्स लीव। तो ये होना चाहिए हमारा गोल। ये नहीं कि नहीं प्रोक्रास्टिनेट करते रहे, नहीं अभी नहीं, बाद में, बाद में। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? यस, नो, मे बी, ओके। So, a conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in the material atmosphere and yet has to get out of such environment. The process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere is Krishna consciousness. For example, a patient who is suffering from a disorder of the bowels due to overindulgence in milk products is cured by another milk product, namely curds. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं, देखो आप कोई कर्म करते हो तो उसके आपको रिएक्शन मिलता है, ठीक है ना? आपने किसी को चैरिटी दी तो आपको भी उसका कर्मा लगेगा कि फ्यूचर में आपको भी कोई चैरिटी दे देगा। अगर आपने किसी को टॉर्चर किया, तंग किया, एक्सप्लॉइट किया, तो फ्यूचर में आपको उसका कर्म लगेगा, आप भी टॉर्चर होगे, आप भी एक्सप्लॉइट होगे, ठीक है? तो ये हो गया कर्म, जो नॉर्मल रेगुलर लोगों को लगता है। लेकिन अब देखते हैं कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि कर्म में ही हम जी रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसी का हमको रिजल्ट मिलता है। तो कहते हैं ना, जैसे लोहा लोहे को काटता है या जहर जहर को काटता है, उसी तरह से जो कर्म हमने किया उसका हमारे को कार्मिक रिएक्शन मिल रहा था। अब वही कर्म करके हम उस कार्मिक रिएक्शन को बर्न कर सकते हैं। जैसे कौन सा कर्म? अकर्मा करके। अकर्मा मतलब स्पिरिचुअल कर्म, मतलब भगवान के उसमें लग के सेवा करके हम इससे जो पुराने जितने भी कर्म एक्यूमुलेट किए उनको सब बर्न कर सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं आयुर्वेद में कई बार इंडाइजेशन होता है ना पेट में, तो आपने बहुत कुछ खाया हो, घी और दूध पकवान बड़े बना के खाए हो खूब, तो इंडाइजेशन हो जाता है। अब इंडाइजेशन के क्योर के लिए कई बारी दही की बनी हुई चीजें देते हैं, क्या आप ये खाओ, ये लाइट है, इससे आपका ठीक हो। तो वो भी मिल्क प्रोडक्ट था, ये भी मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन एक से इंडाइजेशन हुई और एक से इंडाइजेशन क्योर हो रही है। तो यही मैं बोल रहा था, जहर जहर को काटता है, लोहे लोहे का काटता है। कहने का मतलब है कि आपने इतने सारे कर्म और मटेरियल एक्टिविटीज पहले करी, जिसकी वजह से आपके ऊपर इतना बर्डन हो गया मटेरियल चीजों का, जो हमें अभी भी भुगतना पड़ रहा है और फ्यूचर में भी भुगतना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए भी कर्म करना है, लेकिन कौन सा ये कर्म करना है? अकर्म, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पूरा अपने दिन भर लें हम, तो हम पहले की सारी चीजें हमारी नलिफाई हो जाएगी। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं कि हमने आज सुना और आज ये, धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस हम देखना चाहिए कि कैसे हम चेंजेस लाते जा रहे हैं, इंप्रूव होते जा रहे हैं, और वीकली मंथली बेसिस हमारी एक्सटेंट बढ़ते जाना चाहिए। तो हम आगे पढ़ते हैं। मटीरियली एब्जॉर्ब कंडीशन सोल कैन बी क्योर्ड बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस सेट फोर्थ हियर इन द गीता। दिस प्रोसेस इज जनरली नोन एज यज्ञ। तो अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अगर भगवान से कनेक्टेड है, भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए, तो ऐसा कर्म जो है वो अकर्मा कहलाता है, लेकिन ये यज्ञ भी है। यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है ये? यज्ञ कोई भी ऐसी चीज होती है जो विष्णु की सेवा के लिए, जो संतुष्टि के लिए हो भगवान विष्णु की, तो ऐसी चीज जो है उसको यज्ञ कहते हैं। चाहे वो कोई भी नॉर्मल कार्य करो, आप कुकिंग कर रहे हो, ये यज्ञ होगा अगर आप भगवान को ऑफर करोगे, ठीक है ना? आप भगवान का नाम ले रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, तो ये यज्ञ है। The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. तो जितने एक्सटेंट तक हम करेंगे उतना ज्यादा हमारा स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पे लिखा है द वर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मन मीन्स स्पिरिचुअल। तो ब्रह्मन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ब्रह्मा जी चार मुंह वाले,
ब्राह्मण का यहाँ पे मतलब है स्पिरिचुअल। तो इसलिए हमारे को जरूरी होता है समझना किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा। तो उसी के लिए हमारे को आचार्यों के टीका, टिप्पणी, कमेंट्रीज ये सब पढ़नी पड़ती है, तब हमारे को समझ में आता है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा में चल रही है नॉलेज। The Lord is spiritual and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyotir, his spiritual effulgence. तो भगवान जो है वो स्पिरिचुअल हैं और उनके दिव्य शरीर, उनका शरीर है दिव्य, और उसमें से जो एफल्जेंस आता है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, spiritual effulgence. Everything that exists is situated in that Brahma Jyotir, but when the Jyotir is covered by illusion, Maya or sense gratification, it is called material. तो देखो है तो सब भगवान का ही, हर चीज भगवान से रिलेटेड एक्चुअली, लेकिन जब उसको हम अपनी सेवा में लगाने के लिए कोशिश करते हैं, जब हम सोचते हैं कि ये मेरी एंजॉयमेंट के लिए है, तो अभी क्या हो गया है, अभी ये कवर हो गई है, और ये कवरिंग की वजह से हमारे को ऐसी परसेप्शन आ रही है, इसलिए मटेरियल बन गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप देखते हो बाहर सूरज है, सूरज में खूब सारी धूप है, धूप में आप जब जाते हो तो हर जगह धूप होगी, लेकिन आपकी शैडो भी होगी, एक होगी कि नहीं होगी, शैडो होगी ना, अगर खासकर तेज धूप है आपको शैडो अपनी दिखेगी। तो अब शैडो बाहर बनती है, लेकिन आप रूम के अंदर हो जहां पे सन नहीं आ रहा, वहां पे आपको अपनी शैडो इतनी दिखेगी नहीं, होता है कि नहीं? शैडो क्यों दिख रही है? क्योंकि सन की रेज जो है उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। उसी तरह जो स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल रेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये जब कवर हो जाती है तो वो मटेरियल बन जाती है। जब हम उसको अनकवर करके स्पिरिचुअल आ जाते हैं तो हर चीज भगवान से कनेक्ट हो सकती है, हर चीज मटेरियल जो है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल बन सकती है, स्पिरिचुअलाइज हो सकती है, हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे किसी के पास एक पेन है, अब वो पेन से उल्टी पुल्टी इधर उधर की चीजें लिख सकता है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं भगवान से, और कोई उसके फ्यूचर में भी हेल्प नहीं करेंगे। गलत चीजें लिख सकता है, लोगों के बारे में गलत मलत लिख सकता है, गालियां लिख सकता है, तो ये भी हो सकता है पेन का यूज। ये सब विकर्मा कर्मा उन सब में आ जाएगा। लेकिन वही अगर वो पेन से लिखे भगवान के रिलेटेड चीजें, भगवत गीता के श्लोक लिखे, भगवान के ऊपर कई जो आचार्य हैं या जो ग्रेट कई सारे भक्त हैं भगवान के, वो अच्छे अच्छे श्लोक लिखते हैं भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, भगवान के बारे में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखते हैं, तो वही पेन है, अगर वो भगवान की सेवा में लग रहा है तो अब वो स्पिरिचुअल बन गया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना? तो कहने का ये मतलब है कि जब वो चीज कवर हो जाती है मटेरियल उससे, तो उसको जब वो कवर हो जाती है जो भगवान की स्पिरिचुअल चीज है, तो वो मटेरियल बन जाती है। और जब उसको अनकवर करके हम स्पिरिचुअल चीजों के लिए यूज करते हैं तो फिर वो वापस स्पिरिचुअल बन जाता है। तो यहाँ पे जो मटेरियल वेल, ये मटेरियल कवरिंग जो है, दिस मटेरियल वेल कैन बी रिमूव्ड at once by Krishna consciousness. Thus the offering for the sake of Krishna consciousness thus the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumption, the contributor and the result are all combined together, Brahman or absolute truth. अब ये ध्यान से सुनना आप, इसमें कई सारी चीजें हैं। ये जो मटेरियल कवरिंग है, जब ये रिमूव हो जाती है तो अलग अलग एस्पेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि the consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumption, the contributor and the result are all combined together, Brahman. इसका मतलब है कि सारी चीजें जो है वो स्पिरिचुअल बन गई हैं। Brahman basically means spiritual, दिया ना प्रभुपाद ने यहाँ पे, the word Brahman means spiritual, तो सारी की सारी चीजें स्पिरिचुअल बन गई है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आपने भगवान को ऑफरिंग करी, ठीक है, भगवान के लिए आपने कुछ कुक किया और उसको भगवान के सामने ऑफरिंग किया, तो यहाँ पे ऑफरिंग हो गई कंज्यूमिंग एजेंट, ठीक है, जो ऑफर करा भगवान को वो हो गया प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन,
ठीक है, जो भक्त ऑफरिंग कर रहा है वो कंट्रीब्यूटर हो गया, और ये सारे के सारे जो हैं वो स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल चीज को हम एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है ये कवर्ड बाय माया। जब एब्सोल्यूट ट्रुथ जो स्पिरिचुअल चीज है वो कवर्ड हो जाती है माया से, माया मीन्स इल्यूजन, माया मीन्स ऐसी कवरिंग जो भगवान को हमें भुलाने में हेल्प करती है। जैसे मेरे को अगर पाप करना है कोई और सर वक्त मैं भगवान के बारे में सोचता रहूं तो पाप नहीं कर पाऊंगा, मैं मुश्किल हो जाएगा काम। लेकिन अगर कोई चीज मुझे भुला दे कि भगवान है तो मेरे लिए थोड़ा नेचुरल हो जाएगा पाप करना, है कि नहीं। फिर मैं इजीली, फिर मेरे को डर नहीं है किसी का, कोई वो नहीं है कि भाई कोई मेरे को विटनेस कर रहा है या कोई करेगा। तो इसमें जितना एक्सटेंट तक हम भगवान के बारे में कॉन्शियस रहते हैं उतना हम प्योर रहते हैं, उतना हमारे को गलत चीजें करने का वो नहीं लगता। यहाँ में लिखा है एब्सोल्यूट ट्रुथ कवर्ड बाय माया इज कॉल्ड मैटर। मैटर जो मटेरियल चीजें होती हैं, dovetail for the cause of absolute truth regains its spiritual quality। तो हमने अभी पेन का एग्जांपल लिया था ना कि कैसे पेन जो है वो मैटर है, मटेरियल है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में यूज होता है तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है। द कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस of converting the illusory consciousness into Brahman or the Supreme। ठीक है, तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है ये ट्रांसफॉर्म कर देता है मटेरियल चीजों को स्पिरिचुअल में ना। इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इल्यूजरी कॉन्शियसनेस इनटू ब्रह्मन। तो हमारी कॉन्शियसनेस माया में पड़ी हुई, इल्यूजन में पड़ी हुई है, और इसको भी वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पिरिचुअल में, ब्रह्मन में। जब हम भगवान पे फोकस करते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस रहती है भगवान की सेवा। जैसे आप लोगों में से कई को एक्सपीरियंस होगा, जो लोग थोड़े एक्टिव हैं, अपने नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल में जाते हो, सेवा में लगते हो, या फिर जो हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं कुछ टाइम से, जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम्स किए जैसे रथ यात्रा की या जन्माष्टमी की, तो पूरे टाइम यही कॉन्शियसनेस में दिमाग में रहता था कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अरेंज करना है, कितनी कितनी चीजें दिन में चल रही है, लेकिन फोकस दिमाग सबका वहीं पे। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम भगवान का करना है ना, और उसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस पूरी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। तो इसलिए ये प्रोग्राम्स बड़े जरूरी हैं, फेस्टिवल्स बड़े जरूरी होते हैं करने। यहाँ में लिखा है कृष्णा कॉन्शियस इज कन्वर्टिंग तो हमारी इल्यूजरी कॉन्शियसनेस, हमारे जो इधर उधर बाकी चीजों में हम टाइम लगाएंगे, वो अब हम भगवान की तरफ लगा रहे हैं कि कैसे भगवान को ग्लोरीफाई किया। कई लोग क्या करते हैं, वो भगवत गीता लेते हैं, भगवत गीता को आपने देखा होगा इस्कॉन के डिवोटीज, वो जाते हैं और लोगों को भगवत गीता हाथ में पकड़ाते हैं, कहते हैं प्लीज आप पढ़िए इसको, और जो डोनेशन वगैरह थोड़ी बहुत देनी है आपने बुक्स के लिए वो दे सकते हो। तो यहाँ पे गोल क्या है कि लोग टच करें, भगवत गीता के संपर्क में आए, भगवत गीता को खोल के देखें, पढ़ने की कोशिश करें। तो ये जो इनिशिएटिव है या ये जो लोग कर रहे हैं, ये आसान नहीं है करना। लोग, कितने लोग हैं आप में से जो जाके ऐसे दे सकते हैं? नहीं, कोई भी, ज्यादातर लोगों को हेजिटेशन होगा, बोलेंगे नहीं नहीं अपने आप पढ़नी है तो पढ़ेंगे लोग, हम क्यों जाएं, हम क्यों बोलें। हमारी ईगो हर्ट होगी अगर किसी ने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ना। तो ये आसान काम नहीं है, लेकिन जो समझता है कि ये तो देखो भगवान का मैसेज है, मैं लोगों से शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, जिसकी इच्छा होगी वो लेंगे, जिसकी नहीं इच्छा होगी वो नहीं लेंगे, ऐसा व्यक्ति जो है वो कई कई लोगों को दे सकता है भगवत गीता। और कई लोगों की लाइफ चेंज हो गई ये भगवत गीता पढ़ के। इस्कॉन में कई सारे लोग जो आए वो भगवत गीता उनको ऐसे ही किसी ने दी और धीरे धीरे उनको पढ़ा और उससे उनकी लाइफ जो है इम्प्रूव हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इल्यूजरी कॉन्शियसनेस इनटू ब्रह्मन और सुप्रीम। When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is called samadhi or trance। जब पूरी तरह से भगवान में अपना माइंड एब्जॉर्ब्ड है तो ये समाधि या ट्रांस होता है। Anything done in such transcendental consciousness is called यज्ञ। तो अगर आप समाधि में हो, जैसे जो आचार्य हैं, जो श्रील प्रभुपाद थे, वो कोई भी कार्य करते थे हमेशा भगवान के हिसाब से करते, क्या चाहिए, हर चीज में भगवान का हाथ देखते थे कैसे है।
तो ऐसी कॉन्शियसनेस जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी करता है तो वो यज्ञ के बराबर है, वो यज्ञ ही है एक्चुअली. This is called yajna or sacrifice for the absolute. In that condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumption, the performer or leader of performance, and the result are ultimately gain. Everything becomes one in the absolute, the supreme Brahman. That is the method of Krishna consciousness. सब चीजें प्योर स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं जब हम भगवान की सेवा के लिए ये सब प्रयास करते हैं. तो ये बड़े डीप वर्ड्स हैं, कई लेवल के मीनिंग है इनके, लेकिन ये सबसे सिंपल वे में जो समझना है उस वे में हम इसको समझने की कोशिश करें. तो डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी. तो अब आप एक बार और पढ़िए इसको आज और कल सुबह पढ़िएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि हम कल जब डिस्कस करेंगे तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर हम और अच्छे से इसे एलैबोरेट कर सकते हैं. ठीक है ना? और मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं. ऑलराइट, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई फाइनल पॉइंट है तो हम लेंगे, नहीं तो हम एंड करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस. आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद. भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.